You want to see? Go top, please. First of all, we will do how to represent root 2 on number line. Right? Root 2 is a rational number. So what we are trying to do, representation of an irrational number on a number line. We have already learned that rational number can be represented on number line is our same, right? Right? Now we will learn how to represent irrational number on number line. So this number line, which can have all rational numbers, it can have all rational numbers and all irrational numbers. So that is why we call it real number line. Okay? Right, Shivya? Yes, sir. That is why we call it a real number line. It is silent. Now, how to represent root 2 on number line? Root 2 is a, what is root 2? Is a irrational number. Now, you all know Pythagoras theorem. Tell me, if this is 1 unit and if this is 1 unit and this is right angle triangle ABC, then how much will be AC? Tell me. Root 2. AC will be root 2 by using Pythagoras, right? Yes, sir. This will be root 2. Now tell me, if you have this right angle triangle, this is root 2 and this is 1 unit and this is right angle triangle. This is PQR. Then how much will be PR? How much will be PR? By using Pythagoras theorem. 3. 3. No. Root. No. No. Yes, Shivya, what did you say? Root 3. Correct answer. Root 3. It will be root 3. ठीक है? अब इस लॉजिक को अगर मैं यूज करूंगा, जस्ट चेक, जस्ट ट्राई टू कैच द लॉजिक. मुझे यहाँ पे रूट 5 बनाना है और यहाँ पे 1 रखना है. यहाँ पे परपेंडिकुलर में मैंने हमेशा 1 रखा है. तो बेस में क्या रखूंगा? जल्दी से बताओ. व्हाट शुड आई कीप इन द बेस? तो क्या होता है? 2. और रूट 4. तो आपको लॉजिक समझ में आ गया? जो भी रूट फाइंड करनी है उससे 1 लेस देन की रूट चाहिए होगी हमें. अगर हमें रूट 2 फाइंड करनी है तो 1 लेस देन की रूट 1 ही होता है. तो हमें 1 लेस देन की रूट चाहिए. अगर रूट 3 फाइंड करना है तो 1 लेस देन की रूट चाहिए. अगर रूट 5 फाइंड करना है तो 1 लेस देन की रूट चाहिए. इज दिस क्लियर शिविया? Yes, sir. ओके. Yes, sir. अब इसको नंबर लाइन पे कैसे लाएंगे देखो जरा. दिस इज आवर नंबर लाइन, राइट? तो ये हम ले लेते हैं 0. दिस इज 0. अब आप 1 इंच का ओपन करोगे अपना कंपास और यहाँ पर 1 मार्क कर लो और यहाँ पे 2 मार्क कर लो और यहाँ पे 3 मार्क कर लो. लाइक दिस. ये नंबर लाइन होगी. मार्क इट. मार्क दिस एंड टेक 1 यूनिट एज 1 इंच. ठीक है? Mark 0 as A and mark
1 as B. Right? Mark 0 as A and 1 as B. आरे समझ में? इसको A मार्क कर दो, इसको B मार्क कर दो. ओके? कितना ड्रॉ कर लो? Mark 0 as A and mark 1 as B. ये स्टेप्स है, स्टेप्स नोट डाउन करोगे आप. These are steps. शिविका इतना क्लियर है आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ तक हो गया? Yes, sir. Now what will you do? Next step. Draw perpendicular at B such that draw perpendicular at B. ये perpendicular हो गया यहाँ पर like this. perpendicular आप बना सकते हो प्रोजेक्टर यूज करके या कंपास यूज करके बना सकते हो. ठीक है, perpendicular हो गया. इसको PB at B such that PB is perpendicular on AB, right? Such that PB is perpendicular on AB. Is it clear? Yes, sir. ये आपका नेक्स्ट स्टेप हो गया. तो ये स्टेप 1 हो गया, ये स्टेप 2 हो गया, ये स्टेप 3 हो गया, राइट? तो प्रॉब्लम यहाँ तक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दोगे. कैन यू ड्रॉ परपेंडिकुलर? अभी बताता हूँ. उसके बाद फोर्थ मार्क BC equal to 1 unit. Mark BC is equal to 1 unit. तो आप ये 1 unit यहाँ ले लो, ये 1 unit हो गया. ये 1 unit, ये 1 unit. ये आपने C ले लिया 1 unit का. BC is equal to 1 unit, right? परपेंडिकुलर बना के जितना 1 unit है, तो 1 unit आपने मार्क कर दो कंपास से. इसको 1 unit ओपन करके ऐसे मार्क कर दो कंपास से. समझ आ रहा है? अब 1 यूनिट कॉपी करो. 0 to 1 कितना है? 1 यूनिट है. 0 to 1 कितना है? AB कितना है? 1 यूनिट है. ठीक है, such that AB is equal to 1 unit. AB 1 यूनिट हो गया, तो BC भी 1 यूनिट हो जाएगा. ठीक है, क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट है join AC. This implies AC is equal to √2 units. हम दिखा चुके हैं कैसे √2 यूनिट आएगा. by using Pythagoras. By using Pythagoras. Is it clear, Shivya? Yes, sir. ये सब क्लियर है? Yes. अब आपने AC को ज्वाइन कर दिया like this. ओके, तो AC की लेंथ कितनी आ गई? √2 आ गई. ठीक है, राइट? अब आप क्या करोगे? पहले यहां तक करके मुझे कंफर्म करो इतना हो गया. डू इट हियर एंड गिव मी द कंफर्मेशन कि आपने यहां तक कर लिया. कुछ डाउट है? आपको क्लियर हो गया? डाउट तो नहीं है? दिव्या एंड शिविका, बोथ ऑफ यू, Yes, sir. क्या लग रहा है? कोई डाउट है? इज इट क्लियर? Clear, sir. क्लियर, वेरी गुड. नाउ व्हाट विल यू डू? अब ध्यान से देखो. अब आप क्या करोगे? स्टेप 6, कॉपी AC को कैसे कॉपी करोगे? Put the needle on A and pencil on C by compass. आप कॉपी कर लोगे? कॉपी करना आता है?
आप नीडल रखोगे ए पर और पेंसिल रखोगे सी पर और कंपोज ओपन कर लो। दिस इज कॉल्ड कॉपी सी, कॉपी एसी। ठीक है, एसी कॉपी कर लिया, समझ में आ रहा है? यस शिविका, शिविका एसी कॉपी हो गया। Yes, sir. तो देखो मैं क्या करने वाला हूँ, ध्यान से देखो। ये मैंने अपने हैंड को कंपास समझ लिया कि मैंने कॉपी किया, नीडल रखी ए पर, सी पर क्या रखा, पेंसिल, और मैंने कंपास को रोटेट कर दिया। आई विल रोटेट लाइक दिखा, यहाँ देखो, यहाँ देखो, रोटेट लाइक दिस। तो ये रोटेट होके कैसा हो जाएगा, इट विल बी लाइक दिस। ऐसा समझ में? ठीक है, नाउ सेवन स्टेप, स्टेप 7। rotate compass such that AD becomes such that AD, such that AC is equal to AD is equal to √2 on number line. आपने नंबर लाइन पे रोटेट कर दिया। नाउ दिस AD जो नंबर लाइन पे आपने रिप्रेजेंट किया है, ये नंबर लाइन पे √2 आ गया। आ गया नंबर लाइन पे √2। यस शिविया, अब बताओ नंबर लाइन पे √2 आया? Yes, sir. आ गया नंबर लाइन पे √2। Yes, चलो sir. अब √3 बनाए। यहाँ तक कंफर्म करो मुझे, बनाने के बाद, यहाँ तक बनाने के बाद मुझे कंफर्म करो कि बन गया आपका √2 नंबर लाइन पे। ठीक है, बन चुका? ठीक है, यस शिविया, शिविका, दोनों का बन गया है। Yes, sir. अब हमें बनाना है √3, और हमें √3 बनाना है। तो कैसे करेंगे, एक फ्रेश नंबर लाइन ले लो। ठीक है, एक फ्रेश नंबर लाइन ले लो, कोई पहले देखोगे आप, पहले जस्ट वॉच। एक फ्रेश नंबर लाइन ले लो, 0 1 2 3 ऐसे मार्क कर दो। ठीक है, ये फ्रेश नंबर लाइन होगी। अब आप ये स्टेप रिपीट कर दो सारे, और कॉपी करके यहाँ पर एडी को कॉपी करके यहाँ पे ले आओ। ये ए है और ये आपका डी आ गया यहाँ पर। ये आपके पास यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, √2। ये आपने कॉपी करके यहाँ पे √2 लिया है। अब इसको देखो यहाँ पे क्या किया हुआ है, इसको फॉलो करो। अब आपको डी पर एक परपेंडिकुलर बनाना है, डी पे परपेंडिकुलर बनाना है, क्यों? तो अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, कॉपी √2 फ्रॉम द नंबर लाइन, फ्रॉम previous number line and mark on new number line. ये इस पे भी कर सकते हैं। कई बार समटाइम्स स्कूल से इसको फ्रेश बनाओ, कई बार यहाँ भी तो करके दिखा दूंगा मैं आपको, यहाँ भी कर सकते हैं काम। ठीक है, copy √2 from previous number line and mark on new number line such that AD is equal to √2 units, right? अब वही प्रोसीजर रिपीट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये 8 हो गया, स्टेप 9 ये वाला स्टेप रिपीट करेंगे। ड्रॉ परपेंडिकुलर एट, नाउ हम डी पे बनाएंगे, और हम डी पे परपेंडिकुलर बनाएंगे एट डी सच दैट QD is perpendicular on AD। ठीक है, QD is perpendicular on AD। फिर उसके बाद वही स्टेप करेंगे 10। शिविया समझ में आ रहा है? मार्क DE इक्वल टू 1 यूनिट। यहाँ पे DE ले लो 1 यूनिट के इक्वल, जितना 1 यूनिट की लेना है, इक्वल नहीं लेना है, DE इक्वल नहीं लेना, 1 यूनिट लेना है आपके पास। तो यहाँ पर 1 यूनिट ले लिया। तो इसको फिर नेक्स्ट क्या करोगे, 11 ज्वाइन इसको मैं क्या लिया है, E, ज्वाइन ए को ज्वाइन कर दिया। नाउ 12, नाउ AE is equal to square root of 3 as per Pythagoras theorem। √3 बन गया।
शिविया समझ में आ रहा है? Sir, yes, sir. नाउ दिस इज रूट 3. अब रूट 3 को ट्रेस कर दो नंबर लाइन पे जैसे पहले किया था. कंपास यहाँ पे रख के रोटेट कर दो. कंपास यहाँ पे रोटेट करके करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा ये. ये आपके पास हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक. दिस इज पॉइंट एफ. तो ये हो गया ए टू एफ विल बी रूट 3 और नंबर लाइन. ए टू एफ विल बी रूट 3 और नंबर लाइन. इज इट क्लियर? समझ में आया? पहले ऐसा ना था, पहले रूट में आ गए, रूट को बेस से हाँ हाँ बिल्कुल वही किया है. वो हमने सेपरेट नंबर लाइन पे किया. अगर मैं पुरानी नंबर लाइन पे करूंगा तो क्या होगा वो भी कर सकते हो. अगर मुझे इसी पे रूट 3 बनाना है तो कैसे बनाऊंगा? आप डी पे परपेंडिकुलर बनाओगे. डी पे परपेंडिकुलर बनाया क्यों? और 1 यूनिट का आपने ई मार्क कर दिया यहाँ पर. फिर आपने ए को ज्वाइन कर दिया और ए को नीचे ट्रेस कर लिया लाइक दिस. ये ऐसे भी हो सकता है. सेम थिंग. सर ऐसे ये जो रूट फ्लैग वाला सॉरी है हाँ यहाँ भी बना सकते हो. ऐसे ऐसे करके एग्जैक्टली. तो यू कैन ड्रॉ इट इन 3 वेज. आप उसको यहाँ पर भी बना सकते हो. आप उसको अलग भी बना सकते हो. एक और तरीका देखो. एक और तरीका देखो. यहाँ पर क्या करेंगे हम? इधर देखो. यहाँ पर 0 है. यहाँ पे 1 यूनिट है. यहाँ पे 2 यूनिट है. यहाँ पे 3 यूनिट है. आपने क्या किया? यहाँ पे परपेंडिकुलर बनाया 1 यूनिट का. इसको ज्वाइन कर दिया. ये रूट 2 आ गया. फिर आपने यहाँ पे परपेंडिकुलर बना दिया. इधर यहाँ पे परपेंडिकुलर बनाया 1 यूनिट का. इसको ज्वाइन कर दिया. ये रूट 3 आ गया और रूट 3 को नीचे ट्रेस कर दिया लाइक दिस. दिस इज आल्सो दीस आर 3 वेज टू प्लॉट रूट 3. आप इसी नंबर लाइन में प्लॉट कर दो, सेपरेटली प्लॉट कर दो या ऊपर इसके ऊपर प्लॉट कर दो. दीस आर 3 डिफरेंट वेज. समझ में आ गया? शिविका समझ में आया? Yes, sir. इसको नोट डाउन करो. इसके ऊपर डेसिमल वाला नंबर सिखाऊंगा. समझा रहा हूँ. एक बार इस स्टेप्स को नोट डाउन करके रखना. स्टेप प्रोसेस करना. बोलो कौन सा समझाना है? ये वाला. देखो आपने यहाँ से रूट 2 उठाई, यहाँ पे कॉपी कर दी. कॉपी करके ये यहाँ से यहाँ तक रूट 2 हो गई. तो आपने यहाँ पे परपेंडिकुलर बनाया डी पर. तो ये सारे स्टेप लिखे हुए हैं जो रूट 2 बनाने के लिए किया था. ये वाला रूल यूज कर रहे हैं. बेस पे रूट 2 और परपेंडिकुलर में यूनिट 1. तो यूनिट 1 आपने यहाँ पे बना दी. ज्वाइन किया तो रूट 3 हो जाएगा. फायदा को उसको नीचे ट्रेस कर दिया. तो इसमें 1 यूनिट जो यूनिट रखी आपने. यूनिट अगर 1 इंच की रखी है तो 1 इंच का गैप दे दो. ठीक है? क्लियर हो गया आपको? आपको जितनी यूनिट देंगे यूनिट 1 इंच की रखो. 1 सेंटीमीटर बहुत छोटा हो जाएगा आपका कंपास घूमेगा नहीं. इसलिए 1 इंच बोला है मैंने आपको. तो टेक 1 यूनिट. इसमें याद रखो टेक 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 इंच. ये बेटर रहेगा. आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी. ठीक है? 1 यूनिट को 1 इंच ले लेना. इसको नोट डाउन करो और प्रैक्टिस करो जरा थोड़ी देर. फिर मैं दूसरे टाइप के रूप बताऊंगा डेसिमल वाले नंबर की. Shivika, do you have any doubt or is it clear? Yes, sir, it's clear. And sir, I wanted to ask, in the root 3, there's a point Q. So is it same as point P in root 2 or is it different? No, it is any point P, any point Q. आप परपेंडिकुलर बना रहे हो. देखो यहाँ पर आप यहाँ पर परपेंडिकुलर बना रहे हो. यू आर रेजिंग. बस आप कहाँ तक लेके जा रहे हो? किसी पॉइंट तक लेके जा रहे हो. इट इज एनीवेयर. इट डज नॉट हैव एनी रेलेवेंस. इसकी कोई रेलेवेंस नहीं है. आप ऐसे ऐसे ऊपर रेज किया आपने बस. Okay. हमारे लिए ये रेलेवेंट है कि ये 1 यूनिट रखा है आपने. ये डीई 1 यूनिट है. ये रेलेवेंट है. Okay. ठीक है? हमारे पास पीक्यू की हाइट रेलेवेंट नहीं है बिल्कुल भी. इज इट क्लियर? Yes, sir. तो ये सारे स्टेप्स नोट डाउन कर लो अदरवाइज यू विल फॉरगेट. एंड आई विल सेंड द वीडियो आल्सो रिकॉर्डिंग ऑफ दिस सेशन. सो आप इसको रिवाइज भी कर सकते हो. आई विल सेंड द रिकॉर्डिंग इन द ग्रुप. तो अभी एक बार इसको यहाँ तक कंप्लीट करो. और ये नीटली ड्रॉ करना है आपको.
इससे पेंसिल से बनाओ, पेंसिल से बनाओ देखिए। आप कंपास यूज कर रहे हो, मैं पेन से बना रहा हूँ, वैसे नीटनेस नहीं आएगी, तो हाथ से घुमा दिया इसको, कंपास यूज करो। वन सेंटीमीटर दे दो, 1 इंच ले लो, 1 इंच लो बेटा, बहुत छोटा बन रहा है, कभी तो सेंटीमीटर बहुत छोटा होता है, मैंने लिखा है ना 1 इंच लेना है, 1 इंच लो तो सही रहेगा, देखो उसका मतलब देखो कितना सही रहेगा। 1 इंच लिया इसने, रूट 2 आ गया, रूट 2 को नीचे ले आए, अब आप ट्रेस करके बना रहे हो, तो रूट 5 भी बना लोगे आप, यहाँ पे 1 रखो, यहाँ पे 2 करो, अपने आप रूट 5 बन जाएगा। समझ में आ रहा है? रूट 5 क्यों बनेगा? ये 2 नहीं है, इसको मानो रूट 4 है, रूट 4 का मतलब 2 होता है, वहां पर हाइपोटेन्यूज में रूट 5 बनेगा अपने आप से, ठीक है। बी की वैल्यू एडी तक, डी ई, और डी तो 1 यूनिट है, तो लिखा ना 1 ग्रीन का कलर से, और एडी की रूट 2 है, ये मैं लिख लेता हूँ। इसमें क्या है, इसमें एबी है 1 यूनिट, इसमें AC is equal to AD है, that is रूट 2 यूनिट, और इसमें AE is equal to A, इसको F से AF है, that is equal to रूट 3 यूनिट, ठीक है, राइट। इसको कंप्लीट करो, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे, नंबर 9 की। How will you draw root 26 on number 9? How will you draw root 26 on number 9? बेस को 5 यूनिट लोगे तो रूट 25 हो जाएगा, और परपेंडिकुलर में 1 यूनिट लोगे, ज्वाइन करेंगे तो रूट 26 बन जाएगा। आगे समझ में लॉजिक, बस ये लॉजिक फॉलो करना है, ठीक है। चलिए, आपको समझ में आ गया? Yes, sir. चलो, आपने नोट करने तो मैं बोर्ड को क्लियर कर दूं, Yes, sir. आप लोग बताओ, यहाँ पे मैं बोर्ड क्लियर कर दूं एवरीवन, अब बेटा बोर्ड कर दूं क्लियर, सब लोग एक बार फिर फाइनल मुझे दिखा दो, तीनों टाइप के बना लो, एक बार ये भी बना लो, इसी में बना लो रूट 3, एक बार ट्रेस करके बना लो, और एक बार ऊपर करके बना लो, परपेंडिकुलर करके, ड्रॉ इन ऑल द 3 वेज, और स्कूल में जो मैम बोलेंगी वो वाला मैथड फॉलो कर लेना, मैंने आपको तीनों वेज से सिखा दिया। रूट 2 बनाने का तो एक ही वे है, लेकिन रूट 3 बनाने के 3 वेज है, ऑन द सेम नंबर लाइन, on a different number line, on the same number line, using perpendicular above, on the not on the number line but on above it, ठीक है। So there are 3 ways of constructing root 3 on number line, लेकिन बनाना नंबर लाइन पे है, वापस नंबर लाइन पे शो करना जरूरी है, ट्रेस करके लाना है वापस में, आर्क रोटेट करके, ठीक है, आर्क रोटेट करके नंबर लाइन पे लाना जरूरी है।
You want to say it? Okay, shall I take up the next topic? Can you practice this at home? रूट थ्री ध्यान से था क्या? रूट थ्री 1.73 के क्लोज होता है, ये सब चला गया गलत है। दूसरे दिन के लिए आती है, लेकिन इससे ज्यादा मिली दोनों ऑलमोस्ट में नहीं। जब आप दोनों को सेम यूनिट में रखोगे फायदा तो उसको फेल हो जाएगी, समझ रहे हो बात? तो ये दोनों यूनिट सेम रखनी है आपको। यहाँ पे तो आप पूरा पूरे यहाँ पे से ज्यादा रखो, कैसे रूट टू आएगा? अगर वो रूट टू नहीं आएगा तो ये रूट थ्री नहीं आएगा, समझ पा रहे हो बात को? क्या ओके, रूट फाइव में जो से कम रूट रख लिए, या रूट फाइव में तो रूट फोर रख लिए, या रूट थ्री है तो या रूट टू रख लिए, या रूट टू है तो या रूट वन रख लिए। ठीक है, यूनिट सेम रखनी है। वन यूनिट है तो वन यूनिट रखनी है। अब मैंने बोला ना वन के क्या लिखा है मैंने, टेक वन यूनिट इक्वल टू 1 इंच। फिर भी आप नहीं मान रहे हो मेरी बात, अब आपको फॉलो नहीं कर रहे हो तो कैसे करेक्ट आएगा? चलो अब नेक्स्ट देखो जरा, शिविका शैल आई गो टू द नेक्स्ट टॉपिक? Yes, sir. चलो अब देखो जरा, ये मैं रेस कर रहा हूँ। अब इसके स्टेप्स नोट डाउन करना बिल्कुल क्लियरली, दोनों को मिक्सअप मत करना, दोनों टॉपिक को मिक्सअप मत करना, ये भी नंबर लाइन का टॉपिक है। ठीक है, दोनों आज समझ लोगे ना या नेक्स्ट क्लास में कराओ? यस चिड़िया आज करा दूंगा। Yes, sir. सब लोग अपना पेन पेंसिल डाउन, पहले अंडरस्टैंड कर ले। पेन पेंसिल डाउन, यू हैव टू अंडरस्टैंड। फर्स्ट इज रिप्रेजेंट स्क्वायर रूट ऑफ 6.3 on number 9। शिविर यही करना था आपको? Yes, sir. चलो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले इसका रूल समझ लो बिल्कुल, स्टेप बाय स्टेप। ड्रॉ अ नंबर लाइन। स्टेप 1, ड्रॉ ठीक है। सेकेंड स्टेप, मार्क ए बी इक्वल टू 6.6 सेंटीमीटर कह रहा हूं, की बार में क्या मैं क्या बोल रहा हूँ, सेंटीमीटर।
मार्क ए बी इक्वल टू 6.3 सेंटीमीटर ऑन इट। यहां से आपने ए बी तो 6.3 सेंटीमीटर रख लिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप थर्ड, मार्क बी एज 0। यहां पर 0 लेने के लिए नंबर लाइन से 0 होता है, ठीक है। यहां से नंबर लाइन स्टार्ट हो रही है, फिर मार्क units on right of 0 with each unit as 1 centimeter. So now such that BC is equal to 1 centimeter. This implies AC is equal to 6.3 plus 1 is equal to 7.3 centimeter. Clear हो गया? AC 7.3 सेंटीमीटर अपने आप हो जाएगा, क्योंकि 6.3 तो AB था, आगे 1 सेंटीमीटर और गए, तो AC कितना हो गया? 7.3 सेंटीमीटर. Is it clear? Shivya, is it clear? Yes, अब sir. उसके बाद क्या करना है? Fifth step. Find, construct perpendicular bisector of AC. कैसे फाइंड करते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? मालूम है आप लोगों को? आप ए पे कंपास रखोगे, रफली मोर देन हाफ, एक आंख इधर लगेगी, एक आंख नीचे लगेगी। फिर आप सी पे कंपास रखोगे, रफली मोर देन हाफ, एक आंख इधर लगेगी, एक आंख इधर लगेगी, और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को आप डॉटेड लाइन से शो करोगे लाइक दिस। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया। सच दैट ये इसके मिड पॉइंट को m मान लो, सच दैट AM is equal to MC और M is the midpoint of AC. ये स्टेप क्लियर हो गया? M will be now the midpoint of AC, ठीक है? शिविया क्लियर है इतना? Yes, sir. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है आपको? Taking AM as radius, कंपास ओपन कर लो, AM पे रेडियस मान लेंगे उसको। Taking AM as radius, draw a semicircle passing through AC. कैसे बनेगा ये सेमी सर्कल? जब आप M पर नीडल रखोगे और कंपास ओपन करोगे A पर, तो कंपास इधर भी MC भी इक्वल है, यहाँ पर अपने आप सेमी सर्कल बन जाएगा जब आप उसको रोटेट करोगे, ठीक है। M को सेंटर लेके सर्कल बनाओगे तो वो सर्कल AC से पास करेगी, लेकिन आपको सेमी सर्कल बनाना है। इज इट क्लियर? ये शिविया क्लियर है इतना? Yes. क्लियर? चलो नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप नंबर 7, ड्रॉ perpendicular at P such that PB is perpendicular on AC and let it meet semicircle at D. तो आपने क्या किया? आपने V पे परपेंडिकुलर बना दिया। इसका नाम क्या है? इसका नाम है PB, which is perpendicular.
PB is perpendicular, ठीक है, ये बना दिया आपने। और जहां पे वो सेमी सर्कल को मीट कर रहा है परपेंडिकुलर बना दिया, ठीक है। और ये सेमी सर्कल कौन से पॉइंट पे मीट कर रहा है? डी पर, ये पॉइंट डी हो गया, ठीक है। दिस पॉइंट इज डी, ओके। नेक्स्ट स्टेप, join MD, नहीं, now join कुछ नहीं करना, now OD is equal to square root of 6.3, जो OD है ये आपकी स्क्वायर रूट ऑफ, दिखाओ, ठीक है। OD नहीं है, BD है, ये तो जीरो है ना, ये BD है, ठीक है, ये BD है, यहां से यहां तक जितना, ये तो जीरो है, ये वाला है। BD कितना हो जाएगा? रूट ऑफ 6.3 हो गया, ठीक है, हो गया। नाउ BD इज इक्वल टू रूट ऑफ 6.3। अब इसको नंबर लाइन में लाने के लिए क्या करोगे? अगेन आप वही काम करोगे, आप इसको कॉपी करोगे, BD को कॉपी करोगे, जीरो पर है, और इसको नीचे ट्रेस कर दोगे ऐसे, जहां भी आएगा वो अपने पास आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर आप ये मान लो यहाँ पर आया 6 है ना, 6.3 6.3 लगभग से आगे जाएगा, रिप्लेस करके यहाँ पर आ गया, इसको आपने ई मार्क कर दिया, ये ए आपका कितना आ गया? ई कितना हो गया? रूट 6.3। नाउ BD is equal to root 6.3 is equal to D. So this is your answer. इसके स्टेप्स नोट डाउन करो और इसको प्रैक्टिस करो। शिविका आपको समझ में आया ये? Yes, sir. इसको फिर नंबर लाइन पे ट्रेस कर देना, ठीक है, रोटेट करके, बट प्रॉपर मेजरमेंट के साथ करना है, रफली नहीं करना, तभी तो एक्यूरेसी आएगी। अगर प्रॉपर यूनिट्स रखोगे तभी एक्यूरेसी आएगी, प्रॉपर यूनिट नहीं रखोगे तो एक्यूरेसी नहीं आएगी, ठीक है। So now you have learned how to represent an irrational number on the number line. अब आप किसी भी irrational number को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। नोट इट डाउन, नोट डाउन ऑल द स्टेप्स एंड ट्राई दिस कंस्ट्रक्शन। ये सब आप मुझे शो करके दिखाओगे, ठीक है। AO की वैल्यू से कोई मतलब नहीं हो, नंबर लाइन के पीछे है। AO की वैल्यू में कितनी रखी थी यहाँ पर? AO नहीं है बेटा, वो A भी है, वो तो O नहीं है, ये 0 1 2 3 है, इसमें मैंने O कुछ भी मार्क नहीं किया, ये 0 है, मैंने भी गलती से O लिख दिया था। ये 0 1 2 3 4 नंबर लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये नंबर लाइन की बैक साइड है। नेचुरल नंबर लाइन की पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट करना है ना, नेगेटिव को नहीं करना। तो पॉजिटिव नंबर लाइन कहां से शुरू होती है? 0 से, ठीक है। इससे पीछे नेगेटिव है, हमने नेगेटिव को रिप्रेजेंट नहीं किया, पॉजिटिव को। सॉरी, ये सारी चीज नोट डाउन करना। पेन किसका गिरा नीचे?
ए को नहीं है बेटा, क्योंकि नंबर लाइन तो 1 2 3 4 से चलेगी ना, इसलिए इसका एक रूल होता है। ये क्यों आया रूल, वो रूल बाद में समझा दूंगा। जैसे पाइथागोरस अप्लाई करेंगे ना, यहाँ पर एक पूरी प्रॉपर्टी बनेगी, इसकी प्रॉपर्टी यूज हो रही है यहाँ पर मैथ्स की, उसकी वजह से ये रूट 6.3 आया। दैट प्रॉपर्टी आई विल एक्सप्लेन, ठीक है। Now practice this for some time. For square root 2, square root 3, square root of 6.3. You can take any number. Square root of 9.2 ले लो, कुछ भी डेसिमल का नंबर ले लो. You can try. Try 6.7 ले लो, ठीक है. You can try any number and Shivya and Shivika, you send me the working, ठीक है. Okay, sir. वो यूनिट्स है, 5 यूनिट्स. तो 5 यूनिट को रिप्रेजेंट करना है तो आप 1 यूनिट बना लो 1 इंच की. रूट 4 मतलब 2 यूनिट बना लो बेस में, 2 यूनिट्स 2 इंच की. तो जब आप उसको ज्वाइन करोगे हाइपोटेन्यूज को, वो तो ऑटोमेटिकली रूट 5 आ जाएगा. रूट 5 यूनिट्स. हाँ, वो एक यूनिट सेम रखनी होती है ना नंबर लाइन पे. चाहे आप उसको 1 सेंटीमीटर रखो, चाहे 1 इंच, जो मर्जी रखो, गैप सेम होना चाहिए, ठीक है. वो तो जैसे आप स्केल नहीं रखते इसमें, 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 इंच, 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 इंच, कुछ भी रख लो तो दैट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस, ठीक है.
सर आपने बहुत जैसे सेंटीमीटर लिया तो 0.1 के 1 सेंटीमीटर, 1 और 2 के 1 सेंटीमीटर, सब कुछ लिखा हुआ है। इसी के द्वारा रखा है मैंने 1 सेंटीमीटर। अब स्टेप्स देखो, सारी चीज लिखी है मैंने। स्टेप नोट डाउन करना, मिस मत करना, वरना कुछ याद नहीं रहेगा आप लोगों को। सबने स्टेप्स लिख लिए, नहीं लिख लिए? स्टेप्स लिख लो, वरना सब मिस कर जाओगे फिर बाद में। डोंट मिस द स्टेप्स। स्टेप्स विल बी हेल्प यू रिवीजन, वरना कुछ याद नहीं रहने वाला आपको। पहले वाले के स्टेप लिखे थे, लिख लिए थे ना? Shivya and Shivika, any doubt from this topic? No, sir. So send me on working, okay? You have my number in the group, so you can take the picture and convert into PDF and send it to me, Okay, sir. okay? And write your name above it. Both of you will send me separately, and you have to write your name above it. And in the next class, you will complete the worksheet given by me regarding this chapter. And I will take up the doubts. After that, I will go to the next chapter after completing the doubts. Is it clear? Yes, sir. And by weekend, I will take the test of this chapter after finishing the doubts from the worksheet, right? कौन सी सेमी सर्कल? सेमी सर्कल कैसे बनाएंगे? रेडियस यूज करेंगे। सर्कल बनाने के लिए रेडियस कितना है? em जितना। नीडल कहाँ रखोगे? m पर। और पेंसिल कहाँ पे जाएगी? a पर। और यहाँ भी जाएगी c पर। तो इट विल रोटेट लाइक दिस, ठीक है? फिर यहाँ पर b पर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे सीधा। जहां पर ये d पर मीट करेगा, ये हमारा रूट 6.3 हो गया। फिर आप इसको रोटेट करोगे लाइक दिस, कीपिंग द नीडल एट E, तो ये नंबर लाइन पे शो हो जाएगा, ठीक है? गॉट इट? सर ये रूट 5
ठीक है, उसको नंबर लाइन पे ले आओ, अब उसको रोटेट करके लाओ ऐसे। हाँ तो आप इनको ऐसे आर्क दिखाओगे, शो द आर्क कि वो कहाँ पे मीट किया है। यहाँ पे कंपल्सरी ऐसे रोटेट करके लाओगे उसको, ठीक है। ओके, now I am disconnecting the class, Shivi and Shivika. Sir. You must send it to me, right? Any, so I hope you don't have any doubt in this topic. Now it is clear. Yes, sir. Okay, fine.